Good morning, student. So class 11th chemistry, and today's topic is atomic models. So in our previous videos we have discussed about electrons, discovery of electron, discovery of proton, and some basic aspect of electromagnetic radiation as well as quantum theory, Planck quantum theory. So now today, basically after discovery of some fundamental particles like electron, proton and neutrons, so there is a problem to stabilize an atom, means how the atom can be stable. So for this there are various models which were given by Sommerfeld, J.J. Thomson and Ernest Rutherford. Out of these all, there are various models, but out of these all models, these two models in our syllabus, atomic models, and the first one is by J.J. Thomson and second one is by Ernest Rutherford. So only these two models in our syllabus, so we have to deal with them only. So first of all, we would like to understand why these atomic models are needed. Basically these are to explain the stability of atoms. So in later on we will discuss how the atom can be stable or how it can be electrically neutral, means in any kind of atom the number of electron will be equal to number of protons, means electrically it is neutral. So there are different aspects of these stabilities, this electrical neutrality, but today as a point of view of atomic models we will study. To explain the stability of atom we have two types of model, J.J. Thomson and Ernest Rutherford. So the first we are going to start J.J. Thomson's model of atom, which were given by J.J. Thomson in 1898. Okay, this model is also known as plum pudding or watermelon model. So like watermelon, so what happens, this is like a watermelon. If you want to cut it from center, so you can observe there are black seeds, like this, and the center part of this watermelon is dark red. Okay, means like this is dark red part of watermelon, like this. Okay, and the center part, the electron are like the seeds in watermelon. So similarly the seeds are embedded. So this was the basic assumption of J.J. Thomson, and according to which he gave a model of atom, and according to this arrangement of electrons and proton in an atom. So basic theme of Thomson's model is this, arrangement of electron and proton in an atom. So now according to this Thomson's model, he proposed that the positive charge is separate over a sphere of size of atom, that is of 10 to the power minus 8 centimeter radius, in which electrons are embedded to make the atom as a whole neutral, as I talked you before. So this was the Thomson's model. So it is quite simple, but at that time that is very important, because the people are only talking about atoms and very few people, but the Thomson's give a huge model. So for that he got a Nobel Prize in 901. So the basic point which you have to note, it's the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over an atom. That was the key point of this model. Model. So according to this model, it's very simple, plum pudding or watermelon. Like in watermelon the seeds are embedded. So similarly this is the whole atom, and this is its nucleus at the center, and the electrons are embedded like the seeds in watermelon, and this model is known as J.J. Thomson's model of atom. The main important key point is the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom, means the mass is not considered or concentrated at one point, it is uniformly distributed over the atom. So this model, this is the key point of this Thomson's model, and it is very important. So basically what is the drawback? So it is very simple, but the important is drawback also. So now the drawback is this model could not explain the experimental result of Rutherford alpha scattering experiment. So later on we will study the Rutherford experiment, but for the drawback you can note this point,
this model couldn't explain the experimental results of Rutherford alpha particle scattering experiment, therefore it was rejected, or this is the limitation of only this Thomson's model. But at that time that was very important, and note that he got a Nobel Prize in 901 for this model. So very simple, very basic model for the structure of atom, like atomic model. So you will make a simple and easy notes, and the limitation and this basic assumption is very important. So now just move to the second model, and that was given by Ernest Rutherford. Okay, now Rutherford model was based on an experiment which is done by the Rutherford and his students and his colleagues. So basically Rutherford carried out an experiment on the bombardment of atoms by high speed positively charged alpha particles emitted from radium, and give the following observations which we will deal. So this alpha particle scattering experiment, for this he took alpha emitter, like this is the instrument which emit the alpha particles. So the new term for you, that is the alpha particle. Alpha particle is basically nothing, it is the nucleus of helium, positively charged nucleus of helium. As you know, this is helium, the atomic number is 2. Okay, so there are 2 electrons. So suppose this is the nucleus of helium, this is the cell in which there are 2 electrons. If you will remove these 2 electrons, means helium will got 2 positive charge. So this is known as alpha particle. The nucleus of helium atom is also known as alpha particle. So that means the alpha particle are positively charged. Alpha particles are positively charged. Okay, so this is the any radioactive substance which was placed in alpha emitter, by which there are the lead plate with hole, there is a small hole by which the alpha particles can come, and there is a thin gold sheet. There is thin gold sheet. So you can assume it as a whole atom of gold. You can also assume it as an atom of gold. So what happens when he passed the alpha particle? So he got lot of observations. So basically एक बहुत simple observations थे. So which was observed by Rutherford. So what are these observations? So you can understand this and you can write it very easily, but before this you have to understand it. So क्या हुआ देखिए, तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल हमने मान लिया ये गोल्ड का है पार्टिकल, ठीक है, तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए तो क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले गए. भाई कोई भी चीज़ रखी हुई है उससे पार्टिकल सीधे चले जाए, अब तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मतलब उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी. यहाँ पर कोई स्पेस है ही नहीं, बस सब अगर कोई चीज़ सीधे पास हो जा रही है, सो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. तो सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने क्या रख दिया, एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. ये फॉस्फोरेसेंट एक एलिमेंट होता है, इसको आप ये जो आपने पीछे परफोरेटेड कोटेड वाला ये पढ़ा था वहाँ पर भी हमने इसको किया था यूज़. तो यहाँ से कोई भी रेज आएगी अगर यहाँ पर टच होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर एक लाइट स्पॉट आपका प्रोड्यूस होगा, स्पार्क आपका प्रोड्यूस होगा. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए तो इस एटम से निकले, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे स्पॉट्स ये प्रोड्यूस हुए इस एरिया पर और यहाँ कुछ कम हुए, ठीक है इसका. और यहाँ को बीच वाला कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पर एक भी लाइट स्पॉट ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, मीन्स कुछ चीज़ यहाँ से आ रही थी जो बिल्कुल 180 पे बैक हो जा रही थी. तो सिर्फ ये आप मॉडल्स आपने अपने प्रीवियस ये मतलब क्लासेस में भी किया होगा. तो दिस वाज द सिमिलर एक्सपेरिमेंट, बट व्हाट हैपेंस, जो अल्फा पार्टिकल्स आए कुछ तो यहाँ बिल्कुल वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी नहीं पहुँचे, सीधे क्या हो गए, रिवर्स हो गए. और इस एरिया पर बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर वेरी फ्यू थे, यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर कुछ एंगल पे आ गए, डेविएट हो गए. तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और उनके मतलब बेसिस पर क्या दिए, कुछ कंक्लूजन्स दी. तो हम दोनों को साथ में करेंगे डिस्कस. आप इनको सेपरेटेड नोट्स पे भी मतलब लिख सकते हैं. देखिए क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यू विद द स्ट्रेट लाइन. तो कुछ क्या हुए, जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए और सीधे चले गए, यहाँ से सीधे ये चले गए. इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम, व्हाट द कंक्लूजन ही गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस आपका क्या है, एम्प्टी, ठीक है. एंड द सेकंड वाज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास्ड वेरी क्लोज एंड डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल. अब यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है और थोड़ा सा एंगल पे क्या हो जा रहा है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जा रहा है. मतलब आप समझो कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेज आ रही हैं और यहाँ पर कुछ रखा है आपने,
तो यहाँ से कुछ ये पार्टिकल यहाँ को क्यों डेविएट होगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हो सकता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिपल्शन होगा और उस वजह से ये हल्का सा डेविएट हो जाएगा। बस यही चीज़ थी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास वेरी क्लोज एंड डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, उनने कंक्लूजन दिया कि भैया एटम्स जो है कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज, जो एटम है उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तीसरा बात क्या हुआ, वेरी फ्यू पार्टिकल्स थ्रोन बैक 180, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल से 19-20 हज़ार में से एक जो होगा पार्टिकल, वो क्या हुआ, थ्रोन बैक 180, मतलब जो यहाँ से पार्टिकल गया वो 180 पे ही बैक आ गया। अब आप ये समझो यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल्स चल रहे हैं और यहाँ आपके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज हो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, तो क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जैसे ही गया वैसे ही क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये कंक्लूजन ये निकला कि होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कंसंट्रेट एट अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये इनकी सबसे बड़ी क्या थी, डिस्कवरी थी, कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। मींस कोई भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सेंटर पे एक बड़ा स्मॉल एरिया पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा है। सो दैट वाज द कंक्लूजन ही गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स, जैसे यहाँ से जो पार्टिकल गया वो उसी एंगल पे क्या आ गया, वापस आ गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उन्होंने वहाँ से दिया। अब देखिए अगला क्या था, ओवरऑल कुछ इनके इम्पोर्टेंस, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन मतलब मॉडल के रिलेटेड, जो आपको अपनी बुक्स में कुछ ही रिफ्रेशर में भी मिल जाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स को भी कंसिडर, इस फिगर को कंसिडर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ के नोट भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या आया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। भाई साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है इन कंपेरिजन ऑफ द साइज ऑफ एटम। एटम क्या होगा, ये होगा, तो न्यूक्लियस ये होगा। ठीक है, जैसे इसको ये मान लो कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। मीन्स आप ये मानो कि अगर ये क्रिकेट के फुटबॉल का ग्राउंड है, मतलब क्रिकेट का ग्राउंड है, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री लाइन है, तो ये ओवरऑल इसकी क्या है, देखिए ये क्रिकेट ग्राउंड है, सपोज ये एटम है, तो जो क्रिकेट की बॉल होगी ना सेंटर पे रख दो पिच पे, तो ये आपका न्यूक्लियस होगा और ये आपका क्या पूरा एटम होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके लिए सो दिस वाज अनदर पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज कि जो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स एटम क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से क्या होगा कि ओवरऑल एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नाउ द सेकेंड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज ऑल्सो द की पॉइंट कि जो न्यूक्लियस है स्मॉल है, उसके बाहर से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। तो यही क्या इनको ये पॉइंट लेड हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड। सो ये इनका जो पोस्टल्यूट था, ये इनका जो थ्योरी का पॉइंट था, दैट बिकम्स इट्स लिमिटेशंस ऑल्सो। So these are some important points of the Rutherford atomic model and their experiment. From the experiment actually he got his some conclusions. So now what are the drawback, and drawback is very important and frequently asked in examinations, so you can consider this. So the first drawback जो अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। तो अब क्या होगा कि देखिए इसके अंदर जो चीज़ थी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मतलब मैक्सवेल के जो मतलब प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, क्लासिकल मैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ न कुछ एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, ये फिजिक्स में ये मतलब पढ़ते हैं आप, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिक थ्योरी जो होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, भाई जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड में मतलब घूमेगा, under the influence of attractive forces, the electron lose its energy continuously and move closer to the nucleus in a spiral path, and the ultimate result will be that it will fall into the nucleus, but it cannot be possible because an atom is quite stable. So this is the basic problem कि भाई कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो क्या करेगा, मतलब एनर्जी लूज ये करेगा, धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ये गिर जाना चाहिए। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सो यू कैन राइट दिस पॉइंट
कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, so the electron lose its energy continuously and move closer and closer to the nucleus in a spiral path. So the ultimate result will be that it will fall into the nucleus, but it cannot be possible because the atom is quite stable. So this was the first limitation of this theory, and the second was if an atom loses energy continuously. ये आपने मतलब पढ़ा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि आगे हम लोग कुछ स्पेक्ट्रम की बात है मतलब करेंगे, तो वहाँ पर कुछ नए टर्म आएंगे, तो वहाँ पर हम आपको एक मतलब सेपरेटली मतलब बता देंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है. If an atom loses energy continuously, the observed spectrum should be continuous spectrum होना चाहिए, but the actual observed spectrum consists of a discontinuous, well-defined line of definite frequencies. So ये भी आपके पास जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें आपको ये डिफरेंट लाइंस भी मिलती हैं, तो ये चीज़ भी इसकी लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस. बस ये देखा गया कि वो क्या था, डिसकॉन्टिन्यूट, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस था, वेल डिफाइंड लाइंस थी उसके अंदर, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम था. तो क्या चीज़ होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट दीज आर टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. सो मेक नोट्स. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक. So till then, thank you and have a nice day.